ہمیں فخر ہے اپنے پاکستانی ہونے پر، ہمیں فخر ہے اپنے بول والا ہونے پر۔ آج کے شو میں میں ہوں آپ کی میزبان نادیہ فاروق، اور آج ہم بات کریں گے کہ عدلیہ مخالف تقاریر کس کو پڑ گئی مہنگی، امریکہ کی نئی افغان پالیسی لیکن عذاب کا شکار پاکستان، اور قومی اہم سلامتی کے امور پر اجلاس لیکن 3 دن تاخیر کے بعد۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ نواز شریف بیرون ملک روانہ ہونے کے لیے تیار، لیکن نام اب تک ECL میں شامل نہیں ہو سکا۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں میری ساتھی اینکر قرۃ العین اسرا عامر۔ پاکستان کے سپر چینل کے سپر سیٹ سے نیوز الرٹ وتھ سپر وومن کی جانب سے خوش آمدید۔ ہر الزام پاکستان پر حکومت کی پراسرار خاموشی، PTI کا مشورہ، نون لیگ نشیب و فراز سے بے خبر، نااہل آئینی ترمیم کے لیے مصروف عمل، الیکشن کمیشن کا نوٹس بھی بے اثر، قانونی اداروں پر تنقید، نون لیگیوں کا شیوا، فوج کی موجودگی میں انتخابات، کلثوم نواز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، وطن سے روانگی، نئی حکمت عملی، چند دن کی دوری، پھر ہوگی قانون کے سامنے طلبی۔ جی، سب سے اہم خبر تو اس وقت تک کی یہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے سابق نااہل وزیراعظم نواز شریف کی تقاریر پر پابندی عائد کر دی ہے، اور 12 ستمبر تک پیمرا کو عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے تک کا کہہ دیا گیا ہے، یعنی کہ ان کے اوپر مکمل پابندی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے جو 16 وزراء ہیں ان کی تقاریر پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کافی عرصے سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اس طرح کی پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے GT روڈ کے اپنے پورے راستے عدلیہ کے خلاف تضحیک آمیز، توہین آمیز ہرزہ سرائی کی، اس کے لیے ہر محب وطن پاکستانی یہ توقع کر رہا تھا کہ اس طرح کی پابندی ان پر عائد کی جانی چاہیے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی صاحب، جو کہ سابق وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں، ان سے ہم دیگر امور پر بھی بات کریں گے۔ آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں شاہ محمود صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ جو ایک ریسنٹ خبر آئی ہے بالکل تازہ ترین کہ نواز شریف کی تقاریر پر، عدلیہ مخالف تقاریر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، تو مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ صرف عدلیہ مخالف تقاریر پر پابندی عائد ہوگی یا یہ مکمل پابندی ہے ان کی تقاریر پر کسی بھی طرح کے نشریاتی جو ان کا مواد ہے اس کو نشر کیے جانے پر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس قسم کی وہ گفتگو فرما رہے تھے جب وہ لاہور کے لیے روانہ ہوئے اسلام آباد سے، اسلام آباد ریلی جو انہوں نے کی اسلام آباد اور لاہور، اور جو انہوں نے 2 اداروں کو نشانہ بنایا، جس میں پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی افواج کو نشانہ بنایا، اس میں آئین میں اس کی بڑی واضح ممانعت ہے، اور آئین کہتا ہے کہ ان 2 اداروں پر آپ اس قسم کی تنقید نہیں کر سکتے۔ تو وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے تھے، قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اور ہم حیران تھے کہ اس کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا، خاموشی اختیار کی جا رہی ہے۔ پیمرا بھی خاموش تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے آج جو فیصلہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ درست فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کی پوری طرح پاسداری ہونی چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ ایک اور سوال بھی آپ سے کروں گی۔ نہایت اہم سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی بھی ملک و قوم کی بقا کے لیے سب سے امپورٹنٹ نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے، لیکن تیسرا دن ہے آج، اور اب تک ہمیں وزیر اعظم کی جانب سے کوئی خاطر خواہ اہم بیان سامنے نہیں آیا رد عمل کے طور پر، جو کہ امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی تھی۔ آپ وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں، اس طرح کے امور کے لیے وزارت خارجہ کو، وزیر اعظم کو بحیثیت قوم کس طرح کا جواب دینا چاہیے تھا؟ ہماری جو آرمی، اچھا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو رینجرز کے ترجمان میجر قمر رضا جو ہے اس وقت پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے ایک گرفتاری کے حوالے سے یہ ایک پریس کانفرنس آرگنائز کی تھی۔ محمد یوسف عرف ٹھیلے والا، جس کا تعلق MKM لندن سے بتایا جاتا ہے، اس نے آج صبح گرفتاری پیش کی ہے، اور گرفتاری پیش کرنے کے علاوہ اس نے کچھ انکشافات کیے ہیں۔ انکشافات کے ساتھ یہ بات زیر غور آئی ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے خلاف عوامی سطح پر جو بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کو ختم کیا جانا ضروری ہے، اور یہ جو پریس کانفرنس کی گئی یہ بھی اسی کا ایک حصہ تھی، تاکہ اس طرح کے لوگ جو کہ غلط بیانی کر کے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بدنام کرتے ہیں، جن میں رینجرز، پولیس اور دیگر جو انتظامی ادارے ہیں وہ شامل ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ محمد یوسف عرف ٹھیلے والا
मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो कि लंदन से जिसका ताल्लुक़ है उसका रुकन था, जिसको डिक्लेयर कर दिया गया था कि इसको मार दिया है रेंजर्स सिंध ने, लेकिन वो जिंदा था और इसलिए कि वो डर रहा था कि कहीं उसको MKM लंदन कत्ल ना करा दे, उसने ये गिरफ्तारी पेश की है। इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम बात करेंगे NA 120 में होने वाले मौके की। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट विद सुपर वुमन। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो न्यूज़ अलर्ट विद सुपर वुमन। वेलकम बैक टू द शो व्यूवर्स। अब हम बात करेंगे ख़वातीन से जुड़ी खबरों की और सियासत में पाकिस्तानी ख़वातीन की पार्टिसिपेशन की। हमारा सेगमेंट है वुमेन अलर्ट। ज्यों ज्यों दिन गुजरते जा रहे हैं, हल्का 120 का सियासी पारा उरूज पर पहुंच रहा है। हल्का 120 में धांधली के इम्कानात को कम से कम करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने वजारत दिफा को खत लिखकर 17 सितंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाब के दौरान पोलिंग स्टेशंस पर फौज तैनात करने की हिदायत कर दी। इस सिलसिले में फौज वोटों की गिनती खत्म होने तक वहाँ मौजूद होगी और फौज के कमांडिंग ऑफिसर को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात हासिल होंगे। दूसरी जानिब सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की खवातीन सियासतदानों ने रवादारी की बेहतरीन मिसाल कायम की है। कुलसूम नवाज की अलालत पर यास्मीन राशिद और आसिफा भुट्टो ने उनकी सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अपोजिशन की जानिब से ये पैगाम काबिल तहसीन है जो पाकिस्तानी खवातीन की रवादारी की खूबी को जाहिर करता है। हल्का NA 120 में होने वाले इंतखाबात, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद बहुत ज़्यादा सरगर्म दिखाई दे रही हैं, ज़बरदस्त तरीके से अपनी कैंपेन वहाँ पर चला रही हैं और इलेक्शन कमीशन ने भी अब ये एक ख़त लिख दिया है वजारत दिफा को कि वो पोलिंग स्टेशंस के ऊपर फ़ौज तैनात करे। हमारे साथ व्यूवर्स मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या तैनाती इस बात की ज़मानत है कि इलेक्शंस कम्प्लीटली फ्री एंड फेयर होंगे? देखिए, फ़ौज की तैनाती से ये तो इंशाअल्लाह एक उम्मीद की जा सकती है कि पोलिंग डे पुरअमन होगा, जिसकी बहुत ज़रूरत है। आप जानते हैं ये अंदरून शहर का हल्का है और यहाँ मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और वहाँ जिस किस्म के वो वहाँ हरबे इस्तेमाल करते हैं वो किसी से पोशीदा नहीं हैं। तो फ़ौज की तैनाती से इस हद तक तो एडवांटेज मिलेगा। उसके साथ साथ जो एक शोर आ रहा है मेरे इसमें माइक में, हेलो जी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपकी। दूसरा उसके साथ दूसरा जो फ़ायदा होगा वो ये है कि पुरअमन माहौल हो जाए। तो तशवीश वाली बात है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के MNAs, MPAs, लाहौर का मेयर, उनके चेयरमैन पूरे झोंक दिए गए हैं। पूरी सरकारी मशीनरी को झोंक दिया गया है। सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। सरकारी इंतज़ामिया का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है NA 120 के नतीजे को अपने हक़ में मोड़ने के लिए। और गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है, इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए और गालिबन लिया भी है। मुझे इसका एतराफ़ करना होगा। परवेज़ मलिक साहब को उन्हें पूछा है कि आप कैंपेन इंचार्ज किस हैसियत में बन गए हैं? आपने वजारतों के कलमदान संभाले हुए हैं, आप मेंबर कौमी असम्बली हैं। मैं इलेक्शन कमीशन में गया, मैंने कैंपेन के लिए दरख्वास्त की, मेरी दरख्वास्त उन्होंने मुस्तरद कर दी। अगर मेरी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है तो फिर परवेज़ मलिक साहब और उन जैसे नून के MNAs वहाँ किस बुनियाद पर कैंपेन कर रही हैं? क्या कोड ऑफ कॉन्डक्ट तहरीक इंसाफ पर अप्लाई होता है और नून पर अप्लाई नहीं होता? देखिए, इसका हमें देखना होगा। जहाँ तक डॉक्टर यास्मीन राशिद का ताल्लुक है, वो एक बड़ी निडर खातून है, बिल्कुल बड़ी दबंग खातून है, मिडिल क्लास की खातून है, पढ़ी लिखी औरत है और निडर औरत है और इंशाअल्लाह वो इस 70 साल की उम्र में गली गली पैदल कैंपेन कर रही है और वो PTI का फेस है, जो PTI की वैल्यूज़ हैं, जो PTI के नज़रियात हैं, जो PTI का झंडा है, उसको रिफ्लेक्ट कर रही है डॉक्टर यास्मीन राशिद। और मैं PTI के कारकुनों से कहूँगा कि जो PTI के असूलों पर पार्टी में शामिल हुए थे, आज तुम्हारा इम्तहान है। जाओ
डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ खड़े हो। नतायज मिन जानिब अल्लाह है। मैदान में मुकाबला करो, डट के मुकाबला करो। एक तरफ अमारत है, एक तरफ हुकूमत है और दूसरी तरफ कारकुन है, निहत्ते कारकुन है। इंशाअल्लाह जीत नजरियात की होगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद अपनी कैंपेन चला रही हैं वो यकीनन जो मुकाबला है वो बहुत सख्त भी होगा। व्यूवर्स, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रज़ा भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। शैला रज़ा साहिबा, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये बताइएगा कि दो बड़ी जमातों की जो कैंडिडेट्स हैं, ये ख़वातीन हैं जो कि अब खड़ी होने जा रही हैं इलेक्शंस में, ये जो महाज आराई है ख़वातीन के दरमियान, ये ओवरऑल पाकिस्तान की ख़वातीन को क्या मैसेज देने जा रही है? मैं ये समझती हूँ कि दरमियान में ज़रूर ऐसा वक्त आया कि ख़वातीन को डिमोरलाइज़ करने की कोशिश की गई और कुछ कोशिशें अभी भी जारी हैं। लेकिन जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है, पहली पार्टी है जिसने बाकायदा विमेन विंग बनाया और उसके बाद तमाम मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने विमेन विंग बनाए और हमारे मुल्क की खातून आज नहीं हमेशा से इतनी बहादुर है कि मार्शल्लाह को पहली दफ़ा चैलेंज किया तो बेगम नुसरत भुट्टो ने किया था, और फिर MRD जो बनाई डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़, वो भी बेगम नुसरत भुट्टो और बीबी साहिबा ही को, बल्कि ज़्यादा बेगम नुसरत भुट्टो कहना चाहिए। और उसके बाद जो भी मुकाबला हुआ, चाहे डिक्टेटर से लड़ना हो, चाहे दहशतगर्दों से, एक औरत जो है वो बाजी लेके जा चुकी है और जान की बाजी तक लगा चुकी है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ की ख़वातीन को सिर्फ एक थोड़ा सा स्पेस चाहिए और वो बहुत ज़िंदगी के हर मैदान में अपना नाम पैदा कर सकती हैं, चाहे सियासत हो, चाहे जालिम के आगे लड़ना हो, चाहे सही बात कहनी हो। क्योंकि ये किसी ने कहा है ना, आप हमें पढ़ी लिखी माएँ दे दें, हम आपको अच्छी कौम देंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और वैसे भी हमने देखा कि जिस तरह का पॉजिटिव जेस्चर पाकिस्तान की ख़वातीन ने, इन सियासी ख़वातीन ने दिया है, और कुलसूम नवाज़ जो कि ओपोनेंट है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने उनके लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। शाह महमूद कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि अगर ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं होते हैं तो फिर 2018 के इलेक्शंस के लिए आप लोगों का क्या लाहे अमल होगा? देखिए, मैं दो बातें करना चाहूँगा। जहाँ तक हमारी मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट हैं मोहतरमा कुलसूम नवाज़ साहिबा, बहुत ही सुलझी हुई और बहुत ही बावकार खातून है, और मैं दिल से उनकी इज़्ज़त करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत याब करे। एक, लेकिन आपने पाकिस्तान की ख़वातीन के ज़िक्र किया, रोल का। अयूब पूरे आबो ताब से हुकूमत कर रहे थे, फातिमा जिन्ना ने उनका मुकाबला किया, उसके बाद नुसरत भुट्टो साहिबा ने ज़ियाउल हक का मुकाबला किया और बेनज़ीर भुट्टो ने मुशर्रफ का मुकाबला किया। ये हकीकत है, हमें मानना होगा। अब एक जो खुशाइंद बात हुई है, हमने जो इलेक्टोरल इस्लाहात कर रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी जो PTI के धरने के बाद मार्ज़ वजूद में आई, उसने फैसला किया है कि ख़वातीन को कम से कम 5% हर पॉलिटिकल पार्टी कोटा देगी, अकोमोडेशन देगी। तो उससे ख़वातीन को एक दोहरी एडवांटेज हो गई कि रिज़र्व सीट्स भी उनके पास हैं और उनको डायरेक्ट इलेक्शन लड़ने के उन पर जो दरवाजे हैं वो खुल गए। तो पाकिस्तान की ख़वातीन बहुत पढ़ी लिखी हुई हैं, बहुत सुलझी हुई हैं और बहुत कंट्रीब्यूट करने की अहलियत रखती हैं। तो ये खुश आइंद पेशरफ्त है कि पाकिस्तान की ख़वातीन को पाकिस्तान की सियासत में एक रोल मिला और तभी हमने एक खातून को कैंडिडेट यहाँ नामज़द किया है। बिल्कुल। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैं आपसे बात करी थी शाह महमूद कुरैशी साहब। यहाँ पर व्यूवर्स वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन वापस आकर हम मज़ीद डिस्कशन भी करेंगे। ECL में आखिर क्यों नवाज शरीफ का नाम नहीं डाला जा रहा, इसके हवाले से भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो न्यूज़ अलर्ट विद सुपर वुमन। वेलकम बैक टू द शो व्यूअर्स।
बात करेंगे 3 बार नैब ने तलब किया साबिक नाअहल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इसके बावजूद उनको ECL में नहीं डाला गया। एक तो ये बहुत अहम खबर थी जिस हवाले से हम डिस्कस करना चाहते थे, लेकिन जो एक बहुत अहम खबर आज आई है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस चीज़ पर नोटिस दिया है और उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और साद रफ़ीक समेत दीगर 16 अरकान जो कि अदलिया मुखालिफ तकरीर कर रहे हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई है। और इस हवाले से उन्होंने नोटिस जारी किए हैं कि इस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए कि उनकी किसी भी तरह की इस तरह की जो भी वो तनकीद करते हैं या जो अदलिया मुखालिफ वो बयानात देते हैं उनको मीडिया पर नशर ना किया जाए। आपको बताते चलें कि सबसे अहम बात यह है कि बोल ने इस चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। अपने चैनल पे किसी तरह से भी ये नहीं दिखाया गया। बोल है ऐसा चैनल था जिसने ये पहले से ही इस नोटिफिकेशन से भी पहले जो है इस हवाले से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था कि वो किसी भी तरह के इनके मुखालिफ अदलिया मुखालिफ बयानात थे वो टीवी पर नहीं दिखा रहे थे, अपने चैनल पर नहीं दिखा रहे थे। इस हवाले से मैं बात करूंगी अपने गेस्ट शाह महमूद कुरैशी साहब से। जी शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने देखा आज लाहौर हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, साद रफ़ीक समेत दीगर 16 अरकान के जो अदलिया मुखालिफ बयानात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा है कि इनको टीवी पर मीडिया चैनल्स पर ना दिखाया जाए। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, अगर बोल ने अज खुद ये कदम उठाया था तो बोल ने ये दुरुस्त कदम उठाया था। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपके आइन में, कानून में वाज़े है कि आप अदलिया और अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद नहीं कर सकते। हम सब आइन के अब उस हलफ के पाबंद हैं। जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, वज़रा हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, इसके पाबंद हैं। जानते हुए कि आप पर ये पाबंदी आइनी है, कानूनी है, आपने जिस किस्म की वहाँ इश्तियाल अंगेज़ तकारीर की और लोगों को भड़काने की कोशिश की, जिस पर नाकाम रहे लेकिन भड़काने की कोशिश की, वो आइन की और कानून की खिलाफ वर्जी थी। और आज अदलिया ने अगर ये फ़ैसला किया है तो दुरुस्त फ़ैसला है। जी बिल्कुल दुरुस्त फैसला है और इस चीज़ को भी आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई शख्स जो भी वो किसी भी पोजीशन पे है, अगर वो अदालतों का, अगर वो अपने इदारों का एहतराम नहीं करता तो चाहे वो किसी भी हैसियत में है, हमारे लिए भी वो काबिल एहतराम नहीं है। इस बारे में हम यही देख रहे हैं कि हम देखते थे मुख्तलिफ चैनल्स को, हम देखते थे कि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट करते थे। बाकायदा तौर पर उन तकारीर को उठाकर दिखाया जाता था कि फ़लाँ ने ये बयान दिया, फ़लाँ ने ये बयान दिया। और आपने जी आप कंटिन्यू करें, क्या कहना चाह रही हैं सर? देखिए मैं जी सर जी आप पहले बात कर लें। नहीं सर आप बताएं। मैं अर्ज़ कर रहा था देखिए कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत बारहा ये कहती रही है कि हम रूल ऑफ लॉ के मानने वाले हैं, हम कानून की एहतराम करते हैं। लेकिन आपने देखा कि नैब उनको नोटिस पर नोटिस भेज रही है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम पेश नहीं होंगे। क्यों? सवाल है क्यों? क्या कोई मुख्तलिफ कानून होगा? क्या आप कोई मुख्तलिफ मखलूक हैं? आम पाकिस्तान का जो शहरी है, जो नैब के चक्कर काटता रहा है माजी में या आइंदा काटेगा, उसके लिए एक और कानून होगा, आपके लिए एक और कानून होगा। ये इम्तियाजी सलूक क्यों होगा और क्यों किया जा रहा है? लेकिन तो सर, ये एक सवाल सामने उठता है। सर एक बात और है कि अगर ये अब तक पेश नहीं हुए, नैब में 3 बार बुलाने के बावजूद, अब हमें जो ज़राए से जो बात मालूम हुई है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाने की तैयारी, मालूम हुआ है कि आज उनका एक्सपेक्टेड था कि आज उन्होंने चले जाना था। 24 अगस्त को उनका एक्सपेक्टेड था कि वो लंदन जाएंगे। अगर वो चले जाते हैं फिर क्या करेंगे? देखिए, अगर वो चले जाते हैं तो क्या वो इस अश्योरेंस के साथ जा रहे हैं अहलिया की तीमारदारी के बाद वापस आएंगे और नैब के सामने पेश होंगे? क्योंकि माजी में कुछ तल्ख हक़ाइक़ हमारे सामने हैं। हुसैन हक्कानी साहब इसके शर गए और आज तक वापस नहीं लौटे। खदशा ये है कि शायद इस सारे प्रोसेस को स्कटल करने के लिए वो भी ऐसा कर सकते हैं, गालिबन नहीं करेंगे। अच्छा तो है। और ये भी बात चल रही है, क्या ये कोई नया NRO बन रहा है, कोई नई डील हो रही है, क्या ये जा रहे हैं किसी डील के जरिए जा रहे हैं या क्या हो रहा है? ये क्या सराइयाँ हैं, उन क्या सराइयों को मैं और आप तो उसका दम नहीं तोड़ सकते ना। ये क्या सराइयाँ तो उनके कॉल, उनके फेल से जाहिर करेगा कि वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या करने वाले हैं, जा रहे हैं नहीं जा रहे। क्योंकि कहा तो ये गया था
کہ وہ اس کے بعد اگلے مرحلے میں فیصل آباد جائیں گے, ملتان میں انہیں جلسہ کرنا ہے, اور جو عوامی رابطہ مہم ہے وہ ان کی جاری رہے گی. اگر وہ باہر چلے گئے تو پھر عوامی رابطہ مہم کا کیا بنے گا, اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے. تو اس پہ دیکھنے والی بات ہے کہ مجھے اس وقت مسلم لیگ نون کی صفوں میں دراڑیں دکھائی دے رہی ہیں, تضادات دکھائی دے رہے ہیں, دکھائی دے رہی ہے. اب یہ دیکھیں نا ٹرمپ کی پالیسی آتی ہے, اتنی اہم نئی حکمت عملی کا اعلان کرتے ہیں, چین گفتگو کر رہا ہے, ہمارے حق میں بیان دے رہا ہے, روس ہمارے حق میں بات کر رہا ہے, حامد کارزائی جو سابق صدر ہیں افغانستان کے, وہ اس پالیسی کو مسترد کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں افغانستان کے قومی مفاد میں نہیں ہے اور امن کے لیے یہ درست نہیں ہے. پاکستان کے وزیر اعظم کہاں ہیں, پاکستان کے وزیر خارجہ کہاں ہیں, پاکستان کی حکومت کدھر ہے, غائب ہے, دکھائی نہیں دے رہی. 3 دن ہو گئے خاموش بیٹھے ہیں. قوم پوچھ رہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو ذمہ داری کس لیے دی گئی ہے, یہ آپ کو جو اللہ نے عزت اور منصب دیا ہے, اگر پاکستان پر آج حملہ ہو رہا ہے, پاکستان پر جملے بازی ہو رہی ہے, پاکستان پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, ہم پر الزامات لگائے جا رہے ہیں, ہمیں کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے, حکومت پاکستان کہاں ہے, دفتر خارجہ کہاں ہے؟ بالکل. شاہ محمود قریشی صاحب یہ بتائیے گا کہ خواجہ آصف جو کہ ابھی ان کا ہے ارادہ کہ وہ امریکہ کے دورے پر جائیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ اس تمام معاملے کے بعد ان کو منسوخ کر دینا چاہیے یہ دورہ؟ خواجہ آصف کو کون سیریسلی لے گا؟ خواجہ آصف میرے بھائی ہیں, کولیگ ہیں, لیکن ان کو ڈپلومسی کی الف بے پے کی سمجھ نہیں ہے. خواجہ آصف تو جس زبان کے عادی ہیں وہ بالکل ڈپلومسی کے برعکس ہے. وہ تو جملے بازی کے عادی ہیں, وہ تو رنگ بازی کے عادی ہیں, ڈپلومسی کے عادی نہیں ہے. خواجہ آصف کو ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے, ان کو سارا بیک گراؤنڈ کا علم نہیں ہے, ان کا بھی ایکسپوجر نہیں ہے, وہ واشنگٹن میں ایک جانی ہوئی شخصیت نہیں ہے, ہی از این ان نون کموڈٹی. بالکل شاہ محمود قریشی صاحب, آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ ابھی ان کو اتنا ایکسپوجر نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات جو کہ وزارت خارجہ کی سطح پر دنیا میں خرابی تھی, اس میں سرتاج عزیز میں کیا خرابی تھی بتائیے. شیلا رضا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں. انٹریکٹ کرتے رہے, جو انٹریکٹ کرتے رہے, جو ڈیلیگیشنز کو ملتے رہے, تب یہ دیکھیے جب یہ پالیسی بن رہی تھی, بدقسمتی سے نون لیگ جو ہے وہ یا پیناما کیس لڑ رہی تھی, آج بھی وہ آرٹیکل 62 ترمیم میں لگے ہوئے ہیں. وہاں پاکستان کے مفادات پر قدغن لگ رہی ہے, پاکستان کے مفادات کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور ہم آرٹیکل 62-63 کی ترمیم پہ الجھے ہوئے ہیں, ہم جوڈیشری کو نیچا دکھانے میں الجھے ہوئے ہیں. خدا را اپنی ترجیحات کو درست کیجئے. بالکل بالکل, بہت بہتر کہا آپ نے کہ ہمیں اپنی ترجیحات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. شیلا آپ کی طرف آؤں گی. ایک طرف ملکی مفادات داؤ پہ لگے ہوئے ہیں, اور دوسری جانب ہم جو ہے انٹرنل پالیٹکس کا شکار ہو کر اپنے جو اندرونی معاملات ہیں, داخلی امور ہیں, انہی کو نہیں سلجھا پا رہے. آپ کیا کہیں گی؟ آج 3 دن بعد قومی سلامتی کا اجلاس ہو رہا ہے جس کا اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہے. شیلا رضا صاحبہ آپ بتائیے گا. اجلاس 3 دن بعد ہو یا 4 دن بعد ہو, بات یہ ہے کہ ان کی پالیسی ہے کیا. 4 سال میں انہیں یہ سمجھ نہیں آ سکا کہ ان کی پالیسی کیا. اور جو شخص جو ہے بالکل ٹرمپ کی طرح ایک متنازع آدمی اپنے ملک میں تھا, جس کے جیتنے پہ انڈیا پریشان تھا, انہوں نے اس کو دنیا کا معتبر ترین آدمی بنا دیا. اس کو جو ہے مسلم ممالک بھی سول ایوارڈ دے رہے ہیں اعلیٰ ترین, اور اس سے سب مل رہے ہیں. ایران میں بھی آج وہاں سے بھارت اتنا بڑا انویسٹر ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کی پالیسی ہے کیا؟ ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے خارجہ پالیسی. ان کی پالیسی میں ان کا بزنس ہے جو انہیں سب جگہ کرنا ہے. جس بھارت کو آج امریکہ نے اچھا ملک کہا ہے, اس بھارت میں ان 4 سالوں میں سب سے زیادہ یہاں سے پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے انٹرات کو پہلے صحیح کریں, ایک بیان ایک پالیسی کیبنٹ سے, اور اس سے تو آپ پہلے لے لیتے ہیں, لیکن ایک بیان ہوتا ہے, ایک بیانیہ ہوتا ہے آپ کا جو چل رہا ہوتا ہے آپ کی گورنمنٹ میں, وہ کہیں نہیں ہے. اور جہاں تک ایک اور بات کی گئی ECL میں نام اور ان کے جانے کی, تو یہ حکومت اگر گارنٹی دیتی ہے تو اس نے تو پرویز مشرف کی بھی گارنٹی دی. پرویز مشرف واپس آئیں گے تو ہم کیسے مان لیں؟ اور
जो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि काश इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है मेमोगेट केस में अदलिया जो है हमें भी देती। जी बिल्कुल। और शहनाज़ा साहिबा, हमारे लिए एक और भी इसी क्वेश्चन मेरे तरह माइंड में आया है, मैं से चाहूंगी कि डिस्कस करूं। देखिए, हमेशा होता यह है कि जब 3 दफ़ा नोटिस जारी होते हैं और उस पर अगर कोई पेश नहीं होता मुलजिम, तो एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि नैब जो है वो खामोश तमाशाई है। इसके पीछे आपको क्या नजर आ रहा है, क्या वजह हो सकती है? नैब में अगर सलाहियत होती तो 28 केस पहले हैं और 5 ये रेफरेंसेस, तो आप समझ लें कि ये क्या होता। नैब बहुत पहले कर चुकी होती। जो इतने बहादुर लोग हों कि जिनके लिए जो अदलिया के सामने ही सुप्रीम कोर्ट के हाथ खड़े कर लें कि नहीं जी हम कुछ नहीं करेंगे, तो अब जब उनके कोर्ट में बॉल आ गई है तो वो कैसे करेंगे। मुझे तो याद है, कोई ज़्यादा दूर की बात भी नहीं है, राजा परवेज़ अशरफ जो कि नाअहल भी नहीं हुए थे और यही ख्वाजा आसिफ जिनका कुछ और काम है लेकिन अब वो काम कुछ और करते हैं, ये उनके ख़िलाफ़ अदलिया में गए और वहाँ पे अदलिया ने सारी कंपनीज़ को बुलाया, पैसे दें उन्होंने पैसे दिए तो कहा सूद भी दें, उन्होंने वो भी दे दिया। जब कुछ भी साबित नहीं निकला तो उनको नैब के हवाले कर दिया। आज तक जो है वो नैब में हाजिर भी होते हैं। उनके लिए किसी ने ये भी नहीं सोचा कि वो वज़ीर आज़म थे और जब हटे हैं तो नाअहल होके, और वो पेश भी होते हैं और खड़े में आखिरी वक्त तक नहीं समझ आ रहा था कि इनको इजाज़त भी मिलेगी इलेक्शन लड़ने की या नहीं। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में अल्लाह करे कि अब वक्त कहते हैं कि बदल रहा है और कुछ नज़र भी आया है थोड़ा बहुत, तो इसी तरह से हमें पीपल्स पार्टी के लिए अलग निज़ाम ना नज़र आए और दूसरी पार्टीज़ के लिए अलग। हम तो ये समझते हैं कि अभी भी हाथ बड़ा हल्का रखा गया और इनका अभी तक ECL में नाम नहीं है और इससे बहुत ही कहीं घटिया किस्म के केसेस थे जिनको खुद नवाज शरीफ साहब ने सुहेल वड़ाइश से किताब लिखवाई और उसमें कहा कि ये हमने इस्टेब्लिशमेंट की ज़बरदस्ती करने पे बनाए, लेकिन आसिफ साहब 11.5 साल जेल में रहे और उनकी ज़बान भी काटी गई। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की काफ़ी कुर्बानी है, सब जानते हैं। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब, आपसे एक सवाल करूंगी। नैब का मामला है ये और हम ये देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं वो तरह तरह के बयानात दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के जज को निगरान बनाया है, हमें तो पता है फैसला हमारे खिलाफ ही आना है, और ये वो नैब है जिसके खिलाफ खुद सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी मरतबा ये कहा है कि ये बेकार इदारा है। इससे पहले भी हमने ये सुना, कुछ लोग ये भी कह रहे थे नैब के हवाले से कि उनका कोई ज़ाब्ता कार नहीं है, कोई इस तरह का ज़ाब्ता कार, कोई तरीक़ेकार वाज़ा नहीं है, इसलिए हम जब तक सुप्रीम कोर्ट पे नज़रसानी की अपील हमारी उसका फ़ैसला नहीं आता हम वहाँ नहीं जाएंगे। आप क्या कहेंगे? अब ये नैब इनके लिए बेकार इदारा हो गया? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर नैब इतना ही बेकार इदारा है तो हुकूमत तो 4 साल से आप कर रहे हैं ना, और आपको नैब का तल्ख तजर्बा भी है, तो आपको इस्लाहात करनी चाहिए थी, आपको नई कानून साजी करनी चाहिए थी, आपको नैब की इस्लाह करके जो उसकी खामियां हैं उसको दुरुस्त करना था। किसने करना था? हुकूमत तो आज भी आपकी है। वज़ीर आज़म कल भी नून का था, आज भी नून का है। काबीना कल भी नून की थी, आज भी नून की है। ये आप किसको सुना रहे हैं? ये किसको बता रहे हैं? हाकिम आप हैं, बाख्तियार हैं, कानून साजी आपने करनी है, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी आपकी है। तो ये हमें मत बताइए कि नैब बेकार इदारा है, नंबर 1। नंबर 2, नैब की जो कारकर्दगी है उस पर सवालिया निशान उठता है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स उसके सामने हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इदारे के सामने पेश नहीं होंगे, कि आपके लिए एक और कानून होगा और बाकी पाकिस्तानियों के लिए एक और कानून होगा। कानून यकसा होगा, कानून में ये इम्तियाजी सलूक आप नहीं कर सकते। अब एक मैं आपको नुक्ता और कर्ज कर दूं, नैब ने मुख्तसरन टाइम बहुत शॉर्ट है शाह महमूद साहब, मैं करूं, नैब ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि हम हुदैबिया पेपर जो केस है, मिल का जो केस है, हम 1 हफ्ते में उसकी अपील करने जा रहे हैं। नैब ने अपील की? नहीं की। क्यों नहीं की? कौन पूछेगा इनसे? सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कौन पूछेगा इनसे, कौन सवालों का जवाब लेगा। दो का वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ चाहता है। कल हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अभी हम चलते हैं हेडलाइंस की जानिब, और हेडलाइंस के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम रियल पॉलिटिक्स। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।
आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो न्यूज अलर्ट विद सुपर वुमेन।